Assalamu alaikum, dear listeners, and welcome to our podcast today. Just for those listeners who are listening to our podcast for the first time, जो पहली दफा सुन रहे हैं, साइमा मेरी बहन है and she is an ophthalmologist, eye specialist हैं ये, और इनकी फील्ड साइकोलॉजी से रिलेटेड बिल्कुल नहीं है, but she is a very very resourceful person. Information बहुत अच्छी देती हैं. So Saima, you're welcome to our podcast today. Thank you. And we are going to talk about someone's question. The question, Saima, is how can someone focus better with a scattered brain? What can they do? Like a person who has a tough time processing information due to anxiety or other reasons. And this affects daily life and work a lot. So from a psychological perspective, what can you say? Hi, Muna. Thanks for having me on the show. So, ने क्या क्वेश्चन पूछा था, जरा दोबारा बताएं. Okay, the question आपके व्यूअर क्या क्वेश्चन? अच्छा, सवाल ये है कि from a psychological perspective, how can one improve focus with a scattered brain? मतलब इनका mind जो है ना थोड़ा scattered सा feel होता है, maybe because of anxiety and he has issues with processing time. मेरे ख्याल से ADHD kind of symptoms. ठीक है. अच्छा, let us take it first of all. First of all, ये कि जो है बंदे को खुद ये एहसास है कि एक मसला है, तो that is the first thing, that he has insight into his problem. And फिर दूसरी बात ये है कि recognizing it really as a problem. अब ये lack of focus और difficulty planning, execution of thoughts या processing things और ये कि organizing time वगैरह, इसमें अगर मसला आ रहा है and remaining in focus भी अगर मसला है, तो देखें, you first have to get to the bottom of it कि ये attitudinal है या वाकई जो है there is a disorder there. क्योंकि ज्यादातर ये symptoms जो आप बता रहे हैं ना, ये ADHD के होते हैं, attention deficit hypersensitivity disorder जो होता है, hyperactivity disorder जो होता है, और adults में होता है ये ADD कहलाता है. तो अब ये है कि ये जो symptoms हैं ये adult attention deficit disorder के हैं, ADD जो कहलाता है. तो ये जो है first thing तो ये कि ये जो है first thing तो ये कि आप इसका ट्रीटमेंट करें, ठीक है, क्योंकि it doesn't come in adults, it usually doesn't come in isolation. Okay, how do you mean? मतलब कैसे कि isolation में नहीं, मतलब it also comes in association with mood disorders. Mood disorders में आपका anxiety हो गया, depression हो गया, mood swings हो गए ना, ये it's a part of, it's a whole complex, it's a psychological psychiatric syndrome kind of, let's say that way. I'm not a psychiatrist, ठीक है, by profession I'm an ophthalmologist, तो मैं बस ऐसे अपना मैं आपको point of view दे सकती हूँ just as a person, ठीक है. और उसका ये है कि अब आपने जब recognize कर लिया है कि एक problem है, तो अब आप इसका पहले तो appropriate जगह से treatment हासिल करें. You need a psychiatrist evaluation and management, क्योंकि देखिए उनके scoring systems होते हैं, वो assess करेंगे कि कितना severe disorder है और ये ऐसे psychotherapy के सही होगा या treatment medical pharmacological intervention इसमें चाहिए, क्योंकि mood stabilizing drugs भी देने पड़ते हैं, modifiers देने पड़ते हैं, you know. So basically they have to alter the chemistry in the brain. तो उसके लिए जो है full evaluation पहले तो जरूरी है. So ये so best basically ये होगा इनके लिए कि जो है the person should meet a psychiatrist, get proper medication, है ना, इलाज, और बस ये proper evaluation और हो जाए, और ताकि वो psychiatrist ही determine कर सकता है ना मुना कि उनको pharmacological therapy चाहिए या सिर्फ psychotherapy से हो जाएगा. तो अब outside away from the medical point of view, अब attitudinal जो बात आती है, ये जो है अगर आप किस उसमें मेनली हो रहा है. देखिए एक चीज होती है कि people have a flighty nature,
एक they find it difficult to stick to one thing. ओके, मतलब मतलब एक ये चीज शुरू की, हाँ एक चीज शुरू की, तंग आ गए, दूसरी में चले गए, तंग आ गए, तीसरी में चले गए। ये कुछ हद तक एक एटीट्यूडनल अपब्रिंगिंग की भी बात होती है। दैट्स व्हाट आई थिंक। आप स्कूल में पढ़ा चुकी हैं, आप ज्यादा इंटरेक्ट की हुई हैं बच्चों वगैरह से, सो यू विल नो दिस प्रॉब्लम अराइजेस फ्रॉम चाइल्डहुड। यस आई ठीक एग्री है। विद यू। या इट सीम्स कि इनका चाइल्डहुड से इशू होगा। ये है कि पेरेंट्स ने शायद आइडेंटिफाई नहीं किया होगा, तो इट हैज लाइक हाँ, और ग्रोन विद द lot of पर्सन। times पे ये होता है, इट गोज अनडिटेक्टेड ना, it goes undetected. So these things are not really in isolation, they all come together. अच्छा, ठीक इसमें है। पेरेंट्स का तो क्या रोल अब हो सकता है? देखिए मुन्ना, अब ये इसको, अब हम अगर इसको एनालाइज करने लगेंगे ना साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो देखो ये द पर्सन यूजुअली हैज अ न्यूरोटिक पर्सनालिटी। ठीक है, ही टेंड्स टू बी नर्वस, और ही इज ओवर ऑब्सेसिव अबाउट स्मॉल डिटेल्स। तो एक्चुअली आई एग्री विद यू। यस, आई दिस हैव बीन इन कन्वर्सेशन विद जो हिम जो मल्टीपल जो टाइम्स, और मुझे ये ऑब्वियस लगी ये बात कि एक बात के ऊपर वो परेशान बहुत होता है बंदा ना। ही वांट्स टू नो मोर वेदर ही इज ओके अबाउट इट, वेदर ये ही इज जो है ना, फीलिंग। एंजाइटी न्यूरोसिस है, इट्स अ डिसऑर्डर, इट्स अ साइकोलॉजिकल साइकेट्रिक प्रॉब्लम। तो साइकियाट्रिस्ट आर द बेस्ट पीपल, साइकोलॉजिस्ट आर द बेस्ट पीपल टू एड्रेस इट। ठीक है। और देखिए हमारे माशरे में ना मेंटल हेल्थ का बहुत प्रॉब्लम है, और चाइल्ड मेंटल हेल्थ भी बहुत निग्लेक्टेड है। और हम लोगों का जो माशरा है उसमें अपब्रिंगिंग जो होती है ना, पेरेंट प्रेशर बहुत होता है, पीयर प्रेशर बहुत होता है, तो इन चीजों में बच्चे की ना पर्सनालिटी ठीक से नहीं डेवलप हो पाती। यस, तो वेरी फिर ट्रू। जो प्रॉब्लम्स है ना वो रह जाती हैं, अच्छा, ऐसे एंड में देन लेटर इन लाइफ, हम्म, अपनी इंडिपेंडेंट लाइफ में देन दे स्टार्ट मैनिफेस्टिंग इन दिस काइंड ऑफ वे ना। तो अब राइट। इसका सोल्यूशन क्या है? पहला तो यह है कि इनका फुल इवेल्युएशन हो जाना चाहिए, हो जाए, और प्रॉपर ट्रीटमेंट वगैरह हो। फिर उसके बाद बिहेवियर मॉडिफिकेशन है, जो ओके। बिहेवियर मॉडिफिकेशन है, फिर ऑक्यूपेशनल थेरेपी भी आती है। फिर क्योंकि जब आप एक पर्सनालिटी प्रोटोटाइप आपका हो गया है, तो फिर यह है कि आप किस तरह के जॉब्स में आप बेस्ट फिट हैं, आपको वो सब, यू हैव टू अंडरगो ऑल दैट एनालिसिस एंड देन मेक अ चॉइस फॉर योरसेल्फ। कैरियर काउंसलिंग, ये सब ना, दे नीड प्रॉपर, दिस ऑल these issues need to be properly addressed, मेरा ये ख्याल है। अच्छा, वैसे जस्ट अ क्वेश्चन, ठीक है, बिकॉज आई एम नॉट अ मेडिकल पर्सन। हाँ, बट एज एन इंडिविजुअल, अब जैसे मैं हूँ, सपोज आई हैव दिस इशू and I don't हम्म। want to see a psychiatrist because हमारी सोसाइटी में बुरा माना जाता है, the stigma our society has when you go to a psychologist। हाँ, तो सपोज करो मैं खुद हाँ, अपने आप को कुछ करना चाहती हूँ, can I work on my scattered brain? Can I try to improve my focus? Are there any exercises I can do at home? Mona, I cannot recommend anything because, as I said, proper evaluation to identify what really we are dealing with. And बगैर देखे, बगैर डायरेक्टली इंटरेक्ट किए हुए मैं कुछ ज्यादा कह नहीं सकती। मगर ये है कि आई थिंक इसमें जो है ना साइकेट्रिक इंटरवेंशन अब जरूरी है। ओके, ठीक है, मतलब कि अगर पर्सनली आपने अटेम्प्ट कर लिया एंड यू आर नॉट गोइंग एनीवेयर, देन इट्स बेस्ट कि आप साइकोलॉजिस्ट से मिल लें। एग्जैक्टली, पर्सनली आप क्या अटेम्प्ट कर सकते हैं? देखिए ये आपके माइंडसेट पे, आपके एटीट्यूड पे होता है। आपने अगर सरेंडर कर दिया है कि नहीं मुझसे कुछ नहीं हो सकता, तो फिर तो कुछ नहीं हो सकता ना। तो इसमें आपकी विल के ऊपर राइट। बात आ जाती है, आपको विल पावर और ये सब चीजें, फिर वही होता है ना, इट्स ऑल इंटर रिलेटेड। योर सेल्फ एस्टीम, योर दिस थिंग, सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो जो एडीडी या एडीएचडी वाले होते हैं ना, उनको पुअर सेल्फ एस्टीम होती है, लो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, आप कुछ भी दो वो नहीं कर सकते हैं। तो ये प्रॉपरली एड्रेस करने वाली बातें होती है। इट्स नॉट समथिंग अ पर्सन कैन ऑन हिज ओन वर्क ऑन, नहीं। वो ओके, आई जब वाज थिंकिंग कि मे बी आपके पर्सनल सामने डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ जो व्यू से देखें अगर, तो इफ द पर्सन सेट्स स्मॉल गोल्स फॉर अ स्टार्ट, ट्राई टू अचीव इट,
और अगर जो है अकॉम्प्लिशमेंट से थोड़ी पॉजिटिव फीलिंग आती है, मे बी दीज काइंड ऑफ थिंग्स हेल्प विद एंजाइटी एंड द डिप्रेशन आल्सो. फिर अवॉइडिंग द रॉन्ग कंपनी दैट टारगेट्स यू फॉर योर इनकेपेबिलिटी ऑफ फोकस. हाँ, डू दीज तो इमोशनल वो थिंग्स सब हेल्प? दे विल मुना, दे विल, बट एज आई सेड, आपको पहले यही आइडेंटिफाई करना है कि ना आप किस कैटेगरी में फॉल होते हैं. आई मीन वी एज people or as a patient we are not allowed to self diagnose ourselves ना, for a reason. तो इसलिए जो है, because the person may have been struggling for quite a long time, he is going through it, jobs नहीं हो पाते, जॉब रिटेन करना मुश्किल हो रहा है, और टाइम मैनेजमेंट में प्रॉब्लम आ रही है, प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन में इश्यूज आ रही हैं. तो अब ये जब रिकरेंट प्रॉब्लम आ रही है और आप छोटे छोटे प्रोसेसेस से नहीं इसको सॉर्ट आउट कर पा रहे हैं, इसका मतलब आपको प्रॉपर थेरेपी चाहिए ना. Very, very true. That's very true. अच्छा, अगर जैसे for example, let's look at future parents या parents that have kids that have ADHD. What would you suggest कि ऐसे parents क्या कर सकते हैं to help such children right from a young age, ताकि बड़े होकर वो फिर इतने बड़े हो जाएं कि जॉब कर रहे हैं still struggling, ऐसा ना हो? The first thing I would say is get rid of the idea of mental issues being a stigma. ठीक है, there is no shame in seeking dialogue or attention from a psychiatrist. किसी साइकियाट्रिस्ट को मिलने से ये नहीं मतलब कि आप पागल हैं, नहीं, it doesn't translate to that. और अब the lifestyle we have, the time we are in, there are a lot of pressures our children are faced with. तो एंड देखें, हम लोगों के जमाने की अपब्रिंगिंग और अब की जमाने की अपब्रिंगिंग बहुत फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है. और हम लोगों का जो टॉलरेंस लिमिट था और पेशेंस वगैरह था, वो आजकल के बच्चों का बिल्कुल भी नहीं है. ठीक है, तो बहुत चेंजेस आ गए हैं टाइम से. तो इसमें फर्स्ट मेरी यही एडवाइस होगी कि पेरेंट्स अपने बच्चों को क्लोजली ऑब्जर्व किया करें, देखें, रिकग्नाइज दैट देयर इज अ प्रॉब्लम. फिर आप ये एनालाइज करने की कोशिश करें कि ये प्रॉब्लम कहाँ से आती है. मतलब इज इट फ्रॉम योर बिहेवियर टुवर्ड्स द चाइल्ड, या इज इट फ्रॉम द पीयर प्रेशर, या इज इट फ्रॉम द स्कूल. अब अगर ये ऐसी चीज है जो आप अपने आप से मॉडिफाई कर सकें तो आप करें. बट जब ये चीज जो है बच्चे की स्कूल परफॉर्मेंस पे और इन चीजों पे असर करने लगती है ना, देन इट मीन्स कि आपको प्रॉपर अटेंशन चाहिए, आपको प्रॉपर इवेल्युएशन और अटेंशन चाहिए. अब ये जरूरी नहीं है कि हर चीज के लिए वो साइकियाट्रिस्ट दवाई पे डाल दे, नहीं, बहुत सी चीजें सिर्फ साइकोथेरेपी से हो जाती हैं. ये होता है कि वो छोटे छोटे गोल्स पेरेंट्स को देंगे कि आप ये किया करें, ये किया करें, इस तरह से असेस करें, इस तरह की एक्टिविटीज दिया करें. तो ये है ना कि ये दिस इज प्योरली देयर फील्ड. और इसमें ये चाइल्ड हाँ, साइकियाट्रिस्ट एंड और एक पॉजिटिव साइकोलॉजिस्ट. बात ये भी होती है कि पेरेंट्स को ये समझना चाहिए ना कि बिकॉज ऑफ द पीयर प्रेशर, बिकॉज ऑफ द पेरेंट्स प्रेशर, पेरेंट प्रेशर भी होता है. तो अक्सर बच्चे अपने माँ बाप से ओपन अप नहीं हो पाते कि ये इश्यूज हैं, दिस इज व्हाट आई एम स्ट्रगलिंग विद. वो डरते हैं या आई डोंट नो, कुछ होता है, पेरेंट्स और बच्चों में नहीं, गैप रहता है. नहीं, तो दूसरी बात साइकोलॉजी ये कैन कि हेल्प रियली बेटर. हाँ, नहीं, दूसरी एक बात ये होती है ना मुना, अक्सर अक्सर दफा पेरेंट्स क्या करते हैं कि पेरेंट्स ये समझ नहीं पाते कि हर बच्चे की अपनी पर्सनालिटी होती है. ठीक है, मतलब फ्रॉम बर्थ, जब से वो बेबी छोटा होता है, फ्रॉम हिज नियोनेटल पीरियड, उसी से आपको मदर्स जो अटेंटिव होती है उनको पता चल जाता है कि हर बच्चे की पर्सनालिटी ही अलग होती है. वो बड़े होते होते ऑब्वियसली और पता चलता है. नो टू चिल्ड्रन आर द सेम. फैमिली में भी ये होता है. वेरी ठीक वेरी है, ट्रू. यस, तो या. एक चीज मैं ये फील करती हूँ कि पेरेंट्स अक्सर हमारे माशरे में ये गलती करते हैं कि आप ना बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस रखते हैं. आपने किसी के बच्चों को देख लिया कि कोई ऐसा करता है, तो अब आपको ये है कि नहीं, एवरी चाइल्ड शुड बी अलाउड टू ग्रो एंड डेवलप इन देयर ओन पेस, एट देयर ओन पेस. ठीक है, यस, ये बड़ी अच्छी बात कही इन आपने कि देयर ओन. पेरेंट्स को कंपेयर नहीं करना चाहिए, कभी पड़ोसी के बच्चों से, कभी पप्पो के बच्चों से. बिल्कुल, बिल्कुल. क्योंकि क्योंकि इन चीजों से भी बच्चे की मेंटल डेवलपमेंट पे असर पड़ती है. उसके अंदर ना एहसास कमतरी आने लगता है, और यही चीजें फिर आगे जाके जो है ना दे सॉलिडिफाई और प्रॉब्लम बन जाती हैं, बाद में बिहेवियरल प्रॉब्लम्स बन जाती हैं ये. तो इसलिए जो है आई थिंक पेरेंट्स को
सोच के एक इन्फॉर्म्ड और एजुकेटेड वे में बच्चों को अपब्रिंग करना चाहिए, है ना? तो that's what I feel. And इसमें कोई कभी जैसे इसी बंदे से मेरी बात हुई थी, तो on a call, we were on a call for a very long time. So he also expressed his concerns कि like he was asking me if do I think it could be some kind of magic or sihr kind of thing affecting him. But I am not an expert on this, so I told him that I have to think about this. I'm not really. So I thought, what is your opinion about it? What are the chances? And now we are going back to that same question, that same reason why there is a stigma attached to mental health. One of the reasons why हम लोगों के माशरे में, हम लोगों की मुस्लिम सोसाइटीज में ज्यादातर मेंटल हेल्थ के साथ स्टिग्मा अटैच होता है, क्योंकि फिर वो कह देते हैं, लपेट में आ जाता है, इसके ऊपर तो जिन है, इसके ऊपर तो जादू किया हुआ है. But it's not always that. देखिए, it takes a lot for someone to become affected by जादू. ये हर रोज की बात नहीं होती. It takes a lot. ठीक है, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें छोटे छोटे अज़कार कहे हैं, सिखाए. हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें छोटे छोटे अज़कार सिखाए जिनसे जो है सिहर और जिन्नात से दूर रहते हैं. सिंपल सी चीज है, आप आयतल कुर्सी तकरीबन हर एक रोज पढ़ता है, या जो सुबह शाम के अज़कार होते हैं उनमें तीनों कुल सब पढ़ते हैं. These are small protections. आयतल कुर्सी बहुत बड़ा हमारे लिए प्रोटेक्शन है. ठीक है. And in my opinion, हमारी फैमिली में तो ये है ना कि we grew up learning these things from very small age ना. I think we were barely 4-5 years old, हम लोगों को आ गया था recite करना and all. मम्मी अब्बू ने सिखाना शुरू कर दिया था. तो बहुत से इस तरह से घर हैं, they grow up learning these basic things, and it takes a lot before sihr sets in. ये नहीं है कि it's not possible, it is, but it's more likely to be a psychiatric issue than sihr. Okay, but nonetheless, दुआओं से फायदा भी होता है. दुआओं में तो हमारा यकीन होता है, but it will not cure the situation. फायदा है. हाँ, eventually दवाइयाँ तो लेनी ही पड़ेंगी, इलाज करवाना ही पड़ेगा, है ना? इलाज करवाना ही पड़ेगा, वो तो है. बट ये है कि हाँ, दुआ भी है. जैसे कहते हैं सूरह रहमान की बहुत फजीलत है. डिप्रेशन का इलाज है, सूरह रहमान पढ़ना चाहिए, अक्सर सुनना चाहिए. डिप्रेशन दूर रहता है. कुरान की आयतें हैं, कुरान पढ़ना चाहिए रोज, तिलावत करें, अपने अज़कार पाबंदी से करें. मतलब इन बेसिक चीजों से जो है आप अपना फोकस खुदा की तरफ भी रखें, खुदा और नबी की तरफ भी रखें. रिलीजन आप अपना सही से फॉलो करते हैं, उन सब चीजों से भी फर्क पड़ता है. आपकी अपनी जिस तरह से मेरा लाइफस्टाइल या ब्रॉट अप रहा है, आई डोंट थिंक कि आप रिलीजन को अपनी मेंटल हेल्थ से दूर कर सकते हैं. नहीं, it's an important aspect of who we become. Religion grooms us. Even I, like all my life, हम लोग का यही रहा है कि हम इबादत करे बगैर तो रह ही नहीं पाते ना. We feel lost जब इबादत छोड़ दें for some reason, busy schedule हो जाए. इसलिए रोज रात को यासीन, मंजिल वाले they have become a part of our lives. इसके अलावा नहीं हो सकता. Exactly. तो ये है कि हर चीज को ये कहना कि नहीं ये तो जादू है, ये भी सोल्यूशन नहीं है. रिकग्नाइज जब जहाँ पे मेडिकल प्रॉब्लम है. इसीलिए मैं कह रही हूँ ना कि फर्स्ट थिंग ये कि आप गो थ्रू द इवेल्युएशन, गेट द नेसेसरी मेडिकल और साइंटिफिक हेल्प. फिर जब सिहर तब होता है ना कि जब एवरीथिंग you've done and your symptoms are defied by logic or by science, फिर आप सोच सकते हैं ना. तो मगर इनके इस केस में तो आप ना लॉजिक को थ्रो अवे कर सकते हैं ना साइंस को. So you cannot even identify कि प्रॉब्लम किधर है. So you have to start somewhere to get to the root of the issue, no? Right. So we are coming to the end of this podcast. It was a very, very informative discussion. Thank you so much, Saima, for making time for this. And dear listeners, please remember to subscribe and share our podcast. We would love to have more views and more listeners. And if you have questions, please send them in. We would love to answer them. Have a nice day. Sure. Thanks. Bye. Bye.